آپ کے پاس 3 مہینے ہیں، 90 دن، 2160 گھنٹے۔ اور اگر آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ویکیشنز ہیں، انجوائے کرو، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ یہ 3 مہینے آپ کی زندگی یا تو بدل سکتے ہیں یا پھر صرف ٹک ٹاک ہسٹری میں گم ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ملے گا آپ کو ایک پریکٹیکل پلان جو آپ آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں، بنا کسی موٹیویشنل لیکچر کے، بنا کسی ایکسپینسو کورس کے۔ السلام علیکم، دا ایزی پاتھ میں خوش آمدید۔ آج آپ جانیں گے 5 چیزیں جو ان 3 مہینوں میں ایکچولی کام کرتی ہیں۔ یہ 2 لوگ ہیں، دونوں کے پاس سیم سمر، سیم 3 منتھس، سیم گھر، سیم سٹی، اور ستمبر میں دونوں بالکل الگ جگہ پہ ہوں گے۔ پہلا بندہ ویکیشن سٹارٹ ہوتے ہی ریسٹ کے نام پہ آف ہو جاتا ہے۔ پہلے ہفتے میں نیند پوری کرتا ہے، دوسرے ہفتے میں بوریت شروع ہو جاتی ہے، اور تیسرے ہفتے میں گلٹ آتا ہے، اور پھر ستمبر آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے یار اس دفعہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ دوسرا بندہ، اس نے بھی پہلے ہفتے ریسٹ کیا، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن پھر اس نے کچھ ایسا کیا جو بظاہر تو چھوٹا لگتا تھا، لیکن اس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ الگ نہیں تھا، زیادہ ٹیلنٹڈ نہیں تھا، بس اس کے پاس ایک پلان تھا، اور آج وہ پلان آپ کا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 1، ڈیزائن ویک۔ پہلے 7 دن کا سٹرکچر بناؤ۔ پہلی بات، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، ویکیشن کے پہلے 7 دن ڈیزائن ویک ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ویکیشن کے دن سے ہی پروڈکٹیو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور تیسرے دن تک برن آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر پوری ویکیشن گلٹ میں نکل جاتی ہے۔ تو پہلے ہفتے پلان کرو، کام نہیں۔ اپنے آپ سے 3 سوال پوچھو۔ مجھے یہ 3 مہینے کیا سکل سیکھنی چاہیے؟ مجھے کیا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے؟ اور مجھے فزیکلی اور مینٹلی کیسا ہونا چاہیے ستمبر میں؟ ریسرچ کہتی ہے صرف یہ سوچنا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں ایکچولی کام نہیں کرتا۔ 1999 میں ایک سائیکالوجسٹ پیٹر گولوٹزر نے ایک اسٹڈی کی جس میں لوگوں کو 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ ایک گروپ نے صرف گول لکھا، میں ایکسرسائز کروں گا۔ دوسرے گروپ نے لکھا، میں سیٹرڈے صبح 7 بجے پارک میں 30 منٹ تک واک کروں گا۔ تو دوسرا گروپ 2x زیادہ لائکلی تھا اپنا گول ایکچولی کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ یہ ٹیکنیک ہے امپلیمنٹیشن انٹینشنز، مطلب صرف گول نہیں، کب، کہاں اور کیسے یہ بھی لکھنا ہے۔ آپ کا برین ایک ویگ انٹینشن کو سیریسلی نہیں لیتا، لیکن جب آپ اسپیسیفک ٹائم اور پلیس لکھتے ہیں تو برین اس مومنٹ کو ایک کیو کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور آٹومیٹیکلی اس وقت ایکشن موڈ میں آ جاتا ہے۔ یہ کوئی موٹیویشنل ٹرک نہیں ہے، یہ کوگنیٹیو سائنس ہے۔ تو پریکٹیکل کام، آج رات ایک کاغذ نکالو، پہلے لکھو ان 3 مہینوں میں میرا سب سے بڑا گول یہ ہے، پھر نیچے لکھو میں اس پر کام کروں گا اس دن، اس وقت اور اس جگہ۔ جیسے کہ میں گرافک ڈیزائن سیکھوں گا ہر منڈے، وینسڈے اور فرائیڈے کو شام 5 بجے اپنے کمرے میں۔ صرف ایک گول، صرف ایک ٹائم سلاٹ، باقی سب بعد میں۔ اور یہ کاغذ اپنے سامنے رکھو، ڈرار میں نہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، ایک لرنیبل سکل مارکیٹ ریڈی والی سیکھو۔ دوسری بات، ایک سکل سیکھو، صرف ایک۔ پاکستانی جاب مارکیٹ میں ایک چیز بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے، پروف آف ورک۔ ڈگری نہیں، سرٹیفکیٹ نہیں، کام جو دکھایا جا سکے۔ 3 مہینے میں آپ ایک سکل اتنی اچھی سیکھ سکتے ہیں کہ فری لانس پلیٹ فارمز پہ کام آ سکے، انٹرنشپ میں ایج آ سکے، یا صرف خود کانفیڈنٹ فیل ہو سکے۔ بہت سارے لوگ سمر میں یہ کرتے ہیں، ایک دن 5 گھنٹے پڑھ لیتے ہیں، پھر 3 دن کچھ نہیں کرتے، پھر اگلے دن 5 گھنٹے، اور ستمبر میں کچھ یاد نہیں۔ 1880s میں ایک سائیکالوجسٹ نے ڈسکور کیا کہ ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اس کا 50% پہلے دن میں بھول جاتے ہیں، اور اگر دوبارہ ریویو نہ کریں تو 70% پہلے ہفتے میں ہی بھلا دیتے ہیں۔ یہ ہے فرگیٹنگ کرو۔ لیکن جب آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سیم چیز کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو برین سوچتا ہے یہ چیز بار بار آ رہی ہے، لگتا ہے امپورٹنٹ ہے، اسے پرماننٹ سٹوریج میں ڈال دو۔ یہ ہے اسپیسڈ ریپیٹیشن، اور یہی وجہ ہے کہ روزانہ کے 45 منٹ ایک بار کے 5 گھنٹے سے زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں۔
तो 90 दिन में सिर्फ रोज के 45 मिनट का फोकस्ड प्रैक्टिस टोटल 67 घंटे बन जाते हैं उस स्किल में। और कोई भी इंसान अगर 67 घंटे किसी भी स्किल में देगा तो वो बिगनर से कॉन्फिडेंटली इंटरमीडिएट हो जाता है। आपको परफेक्ट नहीं होना, आपको सिर्फ रोज देखना है। तो प्रैक्टिकल काम, अभी इस वीडियो के बाद अपनी एक स्किल चूज करो, फिर YouTube या गूगल पे सर्च करो उस स्किल का नाम और फिर बिगनर रोड मैप 2025। पहला फ्री रिसोर्स ओपन करो, सिर्फ पहला। फिर अपने फ़ोन पे अलार्म लगाओ कल के लिए, जिस वक्त आप एक्चुअली फ्री होते हो। नाम रखो स्किल डे 1, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन डे 1 शाम 5 बजे। कोर्स इनरोल करने की ज़रूरत नहीं, सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, बस कल का एक अलार्म वही काफ़ी है शुरू करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, बॉडी को सीरियस लो, ये प्रोडक्टिविटी का इंजन है। तीसरी बात, और लोग इसको हमेशा लास्ट में रखते हैं, अपनी बॉडी। पाकिस्तान में समर वेकेशन का डिफ़ॉल्ट रूटीन है कि रात को 3 बजे तक फ़ोन, दिन को 12 बजे उठना और खाना कुछ भी कभी भी, और फिर पूछना कि कंसंट्रेट क्यों नहीं होता। आपने कभी नोटिस किया है कि रात को लेट सोए तो अगला दिन किसी काम का नहीं जाता? ये आपकी लेजीनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। नींद के दौरान आपका ब्रेन एक काम करता है जो कि जाग के नहीं हो सकता। उसका नाम है मेमोरी कंसोलिडेशन। मतलब दिन भर जो कुछ भी सीखा वो शॉर्ट टर्म स्टोरेज से लॉन्ग टर्म स्टोरेज में ट्रांसफ़र हो जाता है, सिर्फ नींद के दौरान। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि नींद के बाद मेमोरी रिटेंशन 40% बेहतर होता है उन लोगों के मुकाबले में जो रात को जाग के ज़्यादा पढ़ते हैं। और अगर नींद पूरी नहीं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग का फोकस सेंटर है, लिटरली ऑफलाइन हो जाता है। इसलिए रात को 3 बजे तक फ़ोन चलाने के बाद कोई भी काम ढंग से नहीं होता। और दूसरी चीज़ है सनलाइट, सुबह की नेचुरल रोशनी। आंखों के जरिए ब्रेन को सिग्नल देती है कि कॉर्टिसोल रिलीज करो। ये वो हार्मोन है जो आपको अलर्ट और फोकस रखता है। यहाँ से दिन एक्चुअली शुरू होता है, नींद से नहीं, सनलाइट से। और फिर चलना, सिर्फ 20 मिनट का, एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है जो लिटरली नए ब्रेन सेल्स बनाता है और एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को मजबूत करता है। इसको साइंटिस्ट्स ब्रेन फर्टिलाइजर कहते हैं। तो प्रैक्टिकल काम, कल सुबह चाहे 8 बजे हो, 9 या 10 बजे, उठने के 30 मिनट के अंदर शूज़ पहनो और बाहर निकलो। सिर्फ 20 मिनट, फ़ोन पॉकेट में हो, हाथ में नहीं। कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, बस चलो और आसमान देखो। जैसे कि गली में एक चक्कर या छत पे 20 मिनट, जो भी अवेलेबल हो। और रात को सो जाओ 11 बजे से पहले। सिर्फ एक दिन ट्राई करो, बस एक दिन। अगला दिन खुद बता देगा कि फ़र्क रियल है। पॉइंट नंबर 4, एक प्रूफ प्रोजेक्ट बनाओ। चौथी बात, स्किल्स सीखना काफ़ी नहीं, आपको कुछ बनाना है जो दिखाया जा सके। पाकिस्तान में और ग्लोबली भी इंटरव्यूज़ में, एडमिशन्स में, फ्रीलांस प्रपोजल्स में मैं कर सकता हूँ से ज़्यादा पावरफुल है, ये देखो मैंने किया है। ये प्रोजेक्ट बड़ा नहीं होना चाहिए। एक कैनवा पोर्टफोलियो अगर आप डिज़ाइन सीख रहे हैं, एक सिंपल वेबसाइट अगर कोडिंग कर रहे हैं, एक YouTube मिनी सीरीज़ अगर कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जानते हैं सबसे बड़ा रीज़न क्यों लोग बड़े गोल स्टार्ट नहीं करते? क्योंकि गोल इतना बड़ा लगता है कि शुरू करने से पहले ही थकन आ जाती है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं ओवरवेल्म पैरालिसिस। लेकिन आपका ब्रेन कुछ और ही तरह काम करता है। जब भी आप कोई चीज़ कंप्लीट करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है। ये वो सेम केमिकल है जो आपको इंस्टाग्राम लाइक्स पे मिलता है, लेकिन इस दफ़ा आपने कुछ एक्चुअली बनाया है। और ये डोपामिन आपको सिर्फ खुश नहीं करता, ये डायरेक्टली आपकी मोटिवेशन और फोकस को बूस्ट करता है अगले टास्क के लिए। एक छोटा काम कंप्लीट किया, एक बड़ी एनर्जी मिलती है। ये है कंप्लीशन लूप। और यही वजह है कि जो लोग छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं वो बड़े गोल्स तक पहुंच जाते हैं। और जब आप कुछ दिखाने लायक बनाते हैं तो एक और चीज़ होती है, आइडेंटिटी शिफ्ट। आप खुद को अब सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि
डिज़ाइनर, डेवलपर और क्रिएटर कहने लगते हैं और ये आइडेंटिटी आपका अगला एक्शन डिसाइड करती है। तो प्रैक्टिकल काम, आज अभी ये सवाल अपने आप से पूछो और जवाब लिखो। सितंबर में मेरे हाथ में क्या एक चीज़ होगी जो मैं किसी को दिखा सकता हूँ? वो चीज़ लिखो एक लाइन में, जैसे कि मेरे पास 5 लोगो डिज़ाइंस होंगे जो मैं कैनवा में बनाऊंगा, या एक छोटी वेबसाइट होगी जिसमें मेरा काम शो हो, या 10 शॉर्ट वीडियोस की एक प्लेलिस्ट होगी मेरे यूट्यूब पे। प्रोजेक्ट बड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ रियल होना चाहिए। और जब आप लिखें तो साथ में ये भी लिखो कि पहला छोटा स्टेप जो मैं इस हफ्ते ले सकता हूँ। पॉइंट नंबर 5, एक मीनिंगफुल कनेक्शन। नेटवर्किंग जल्दी शुरू होती है। 5वीं बात, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाती है स्टूडेंट्स में, एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाओ। पाकिस्तान में नेटवर्किंग का नाम सुन के लोग सोचते हैं ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है, या मेरे पास तो कोई सोर्स ही नहीं। सोचिए आपके क्लोज फ्रेंड्स कौन हैं? ज़्यादातर वो लोग हैं जो आप ही जैसी सिचुएशन में हैं, सेम एज, सेम कन्फ्यूजन, सेम क्वेश्चंस। और यही वजह है कि वो आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं बदल सकते। 1973 में एक सोशियोलॉजिस्ट मार्क ग्रेनओविटर ने एक स्टडी की जिसमें उसने देखा कि लोग जॉब्स कैसे ढूंढते हैं, और रिजल्ट शॉकिंग था। ज़्यादातर लोगों को नौकरी मिली उन लोगों के ज़रिए जो उनके क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। कोई दूर का जान पहचान वाला, एक सीनियर, एक एक्स कोलीग। ये वीक टाइज यानी जान पहचान वाले असल अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं, क्योंकि आपके क्लोज फ्रेंड्स के पास वही इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास है। लेकिन एक अलग फील्ड का बंदा, उसके पास वो डोर्स हैं जो आपने आज तक देखे भी नहीं। आपको 50 कनेक्शंस नहीं चाहिए, एक सही बंदा जो आपको एक सही डायरेक्शन दे सके, वो आपके 3 महीने का मतलब बदल सकता है। और ये मुश्किल नहीं है। लोग जेन्युइनली खुश होते हैं जब कोई उन्हें रिस्पेक्टफुली पूछे। तो प्रैक्टिकल काम, आज लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक सीनियर स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल ढूंढो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, और ये 2 लाइन मैसेज भेजो बिल्कुल इसी तरह। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस फील्ड में सीरियस इंटरेस्ट रखता हूँ और आपका काम देख के आया हूँ। क्या आपसे 15 मिनट कभी बात हो सकती है? कोई फॉर्मल नहीं, बस डायरेक्शन चाहिए। जैसे कि अगर आप यूएक्स डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, कोई भी पाकिस्तानी डिज़ाइनर ढूंढो जो Behance या लिंक्डइन पे एक्टिव हो और यही मैसेज भेजो। रिजेक्शन का डर है? वर्स्ट केस वो रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन बेस्ट केस आपकी ज़िंदगी का एक नया दरवाज़ा खुल जाएगा। तो इसलिए आज ही भेजो। तो ये था आपका 3 मंथ समर प्लान। नंबर 1, डिज़ाइन वीक। पहले 7 दिन में प्लान करो, काम बाद में। नंबर 2, एक लर्नेबल स्किल सीखो जो मार्केट रेडी हो, रोज़ 1 घंटा। नंबर 3, बॉडी को सीरियस लो, नींद और 20 मिनट सुबह की वॉक। नंबर 4, एक प्रूफ प्रोजेक्ट बनाओ जो दिखाया जा सके। और नंबर 5, एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाओ, सिर्फ एक। ये 3 महीने सबके आते हैं, फ़र्क सिर्फ ये होता है कौन प्लान के साथ जाता है। ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो जिसने अभी तक ये सोचा ही नहीं कि समर कैसे यूज़ करें। शायद आपका ये एक शेयर उसका सितंबर बदल दे। और अगला वीडियो होगा रिजल्ट के बाद क्या करो, एफएससी स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट गाइड। रिजल्ट्स आ चुके हैं या आने वाले हैं, और हम बात करेंगे कि आगे का रास्ता एक्चुअली क्या होगा। तब तक द इजी पाथ पे चलते रहो।